Good morning class 5 students. I hope you all are fine. Let us begin today's maths class. Today is 6th August 2020 and the day is Thursday. In today's class we are going to learn HCF and LCM. What is HCF? HCF is highest common factor. I hope you are aware of factor. Factor is the number which divides the given number completely without any remainder. Common factor of two or more numbers is that number which divide the given numbers completely. So here we have to find highest common factor. There is a possibility that 8 and 24 both can be divided by many numbers. But here while finding HCF we have to find the highest, that means the greatest number which divides 8 and 24 both completely. So there are two types of method which can be used to find HCF. First method is listing method. In listing method, we will write down the factors of 8 and 24 separately. So let us start. Write factors of 8. That means the number which can divide 8 completely. So begin with the natural number. 1 can divide any number. 2, yes, 8 is an even number. 2 can divide it. 3, no, in the table of 3 8 doesn't come. Next number is 4, yes, 4 2s are 8, so 4 can also divide 8. 5, no, because the digit is not 0 and 5 in the ones place, 5 cannot divide 8. 6, no. 7, no, in the table of 7 8 doesn't come. 8, yes, 8 ones are 8, so 8 can also divide 8. Remember students that the first factor will be 1 and the last factor will be the number itself. So since we have got 8, no other number is left which can divide 8. Okay. Now which is the next number? The next number is 24. We will write the factors of 24. So we will begin with 1. Number 2, 24 is an even number. Look at 4 in the ones place. It can be divided by 2. So 2 is a factor. 3, does 24 comes in the table of 3? Yes. 3 8s are 24, so 3 is a factor. 4, yes, 4 6 are 24, so 4 is the factor. 5, no, because in the ones place neither there is 0 nor it is 5, so 5 cannot divide 24 completely. Next 6, yes, 6 4s are 24, so 6 is the factor. 7, no. 8, yes, 8 3s are 24, so 8 is the factor. 9, 10, 11, 12. 12 2s are 24, isn't it? Remember students, as I have told you, whenever you are finding factors, 1 is the first factor and the number itself is the last factor. Similarly, 24 last factor will be 24 and second last factor will be half of 24. So tell me, what is the half of 24? 12 is the half of 24. That means this is the second last. And what will be the last? Last will be number 24. So we have written all the factors of 8 and 24. Now we will circle the common factor which is in 8 as well as 24. So 1, circle them. 1 is in both the numbers. 2 is in both the numbers. 4 also in both the numbers. 8 as well. So we have circled the numbers which are present in 8 factors as well as 24 factors. Look at the highest number, 1, 2, 3, 4, 8. Which is the highest? 8 is the highest. So our HCF is 8. Okay, 8 is the number which can divide 8 and 24 completely. Clear? Highest. Second method is common division method. Common division method is quite simpler than listing method. Let me show you how. In common division method, we will use the prime factorization method, but little different. I am using the same question, that is 8 and 24. Now, in common division method for finding HCF, we will use the numbers or the factors which can divide both the numbers. ठीक है, ऐसा नंबर हमें कोई भी नहीं लिखना जो सिर्फ 8 को डिवाइड करेगा या सिर्फ 24 को, दोनों को डिवाइड करेगा. सो वी कैन स्टार्ट विद 2. यस, 1 से नहीं स्टार्ट करना, 2 से स्टार्ट करना है. ठीक है. सो मोस्ट प्रोबेबली वी विल यूज द फैक्टर्स, नो, प्राइम फैक्टर्स ओनली, जो कि सिर्फ अपने नंबर पे या 1 के नंबर से आते हैं. तो 2 से स्टार्ट करते हैं. ओके. 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4. दैट मीन्स 2 12s are 24. 2 ऐसा नंबर था जो दोनों को डिवाइड कर पाया. अब हमें
2 से ट्राई करना है क्या? 2 4 एंड 12 को डिवाइड कर सकता है? यस, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों के दोनों आते हैं. हाउ मेनी टाइम्स? 2 2s are 4, 2 6s are 12. Now can 2 divide 2 and 6 both? Yes, because these numbers comes in the table of 2. How many times? 2 1s are 2, 2 3s are 6. Now क्या मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है 1 को छोड़ के? ओके, 1 हम कभी नहीं लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड में, नहीं है ना. इसका मतलब कि मेरा HCF क्या है? जो मेरे प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसका प्रोडक्ट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर. सो वी विल मल्टीप्लाई दीज प्राइम फैक्टर्स. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 is the answer. See, answer is matching. Method अलग है but answer will be same. This was your HCF. Now I will come to your LCM. What is the full form of LCM? Least common multiple. Least means lowest, छोटा. Common multiple. In HCF we were finding factors. In LCM we will find multiples. Multiples मतलब multiplication table. किसका? 6, 12, 24. So first of all we will use listing method. Listing method में list out करना है. We will write मल्टीपल्स ऑफ 6. चलो 6 का टेबल लिखो कम से कम 5 टाइम्स. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. 5 times I have written. Now next number is 12. So I will write multiples of 12. So do you remember the table of 12? Write it 5 times. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60. Next is 24. Now write the table of 24. क्योंकि 24 का आपको टेबल नहीं आता तो आप तब तक लिखोगे जब तक आपके पास ऐसा नंबर नहीं आ जाता जो दोनों में है. अभी तक क्या है? दोनों के पास 12 है. 24 1s are 24, 24 2s are क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, मतलब 2 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा. 2 4s are 8, 2 2s are 44. So 24 2s are is 48. ठीक है, क्या हमारे पास 48 है अभी यहाँ पे? मेरे पास 48 यहाँ पे है, 48 यहाँ पे भी है. सो लुक एट, जिस नंबर का आपको टेबल नहीं पता है उसका आपने धीरे धीरे ये 2 2 3 3 करके मल्टीपल्स लिखने हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबका लिखना है. क्या आपको अभी इन तीनों में कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है. दैट इज़ 24 24 24. आपको सिर्फ सबसे पहला कॉमन मल्टीपल का इंतज़ार होना चाहिए, वही आपका आंसर है. सो यू विल राइट लीस्ट. लीस्ट मतलब सबसे छोटा. सबसे छोटा तो वही होगा जो सबसे पहला सर्कल होगा, सबसे पहला कॉमन होगा. ठीक है, तो हमें एक ही का इंतजार करना है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 24. वी गॉट द आंसर. नाउ लेट अस फाइंड द सेम LCM ऑफ 6 12 24 बाय कॉमन डिवीजन मेथड. इसको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करा है ना हमने. वी राइट दीज नंबर्स. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने सिंगल नंबर का किया है, LCM में हम क्या करेंगे? सबका. अब वी विल स्टार्ट विथ 2. अगर 2 से एक भी नंबर डिवाइड होता है तो हम कर बैठेंगे उससे डिवीजन. सो 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4. नेक्स्ट 2 ही लिखूंगी. क्यों? क्योंकि 2 से 6 तो जाता ही है, बेशक 3 ना जाए. सो जो नहीं जाता उसको एज इट इज़ लिखना है. राइट इट एट एज इट इज़. 2 3s are 6, 2 12 के टेबल 12 कितने बार आता है? 12 2 के टेबल में 6 टाइम्स. तो 2 6s are 12. नाउ अगेन आई विल राइट 2. क्यों? क्योंकि 6 जो नंबर है वो 2 के टेबल में जाता है. जो नहीं जाता उसको एज इट इज़ लिखो. राइट, 2 3s are 6. नाउ क्या मैं 2 लिखूंगी यहाँ पे? नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में तीनों में से एक भी नंबर नहीं जाता. तो नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद? 3. प्राइम नंबर इज़ द नंबर जो 2 ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. सो 3 इज़ द नेक्स्ट प्राइम नंबर. 3 की टेबल से ये तीनों जाते हैं. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3. जब आपके लास्ट में 1 आ जाए, हर नंबर के बदले 1 आ जाए, तब आपका वहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड फिनिश हो जाता है. तो आपका एलसीएम निकलेगा कैसे? एलसीएम निकलेगा जो भी आपके ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसका प्रोडक्ट निकाल के. तो राइट डाउन जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं 2 × 2 × 3 फाइंड आउट करते हैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So 24 is the answer. See, the answer is matching. Let us do few questions from exercise 5.3 in the copy.
On page number 59, you have got exercise 5.3 where the question number 1 is find the HCF by listing method. Next is find the HCF by common division method. थर्ड क्वेश्चन फाइंड LCM बाय लिस्टिंग मेथड. एंड अगर आप नेक्स्ट पेज में देखोगे तो वहाँ पे आपको भी दिखेगा फाइंड LCM बाय कॉमन डिवीजन मेथड. योर होमवर्क इज A and B part of all the 4 questions. C part I will just show you in the copy. How will you do? So first question AB, second question AB, third question AB. ये आपका होमवर्क है. आज डेट है आपकी 6.8.20 and this is your homework whatever I have ticked. Now let's check your classwork. This is your classwork. See, teacher has written today's date which you all also write. Classwork chapter number 5. What we have discussed today? HCF. What is the name of HCF? Highest common factor और greatest common factor. दोनों का मतलब सेम है HCF. LCM means lowest common multiple और least common multiple. The same is LCM. नेक्स्ट मेथड्स टू फाइंड HCF LCM. HCF LCM को फाइंड करने के लिए 2 मेथड है. क्या नाम है? लिस्टिंग मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड. एक्सरसाइज 5.3 जैसे कि मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं आपको C पार्ट करके बताऊंगी. सो लेट मी डिस्कस इट. लिस्टिंग मेथड से HCF फाइंड आउट करना है. 3 नंबर्स दे रखे हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 80, वो सारे नंबर जो 80 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली मैंने लिखे. वो सारे नंबर जो 165 को डिवाइड करते हैं आई हैव रिटन. The numbers which divide 190 I have written them. Now I have circled the common factors जो common है और मुझे सिर्फ 2 ही नंबर कॉमन दिखे 1 and 5. 1 and 5 में से the greatest one, the highest one is 5. So HCF of these 3 numbers is 5 this way. अब कभी कभी आपको ये हो सकता है कि मैम मुझे तो पता ही नहीं चल रहा 80 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं या 190 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं. तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद 1 2 3 ऐसे करके आप 10 तक कम से कम करो. फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो 2 5 10 होता है तो 10 भी आपका डिवाइड करेगा 190 को. फिर इस 2 से 190 को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो भी आपका डिवाइड करेगा 190 को. जैसे अगर मैं 190 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा 95 आता है तो 95 भी फैक्टर होगा. अगर मैं 190 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आता है 38, वो भी आपका फैक्टर होगा. इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे 190 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा. 19 इज ऑल्सो अ फैक्टर. इस तरीके से आप गेस वर्क कर सकते हो, हिंट ले सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 है कॉमन डिवीजन मेथड से आपको इन तीनों का HCF निकालना है. सो मैंने क्या बताया था HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर वो नंबर होते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स है ना. फैक्टर वो नंबर है जो डिवाइड करेंगे और कॉमन नंबर है. इसका मतलब है तीनों को लिखने के बाद ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड करे. इसका ध्यान रखना है. जैसे 2 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि 1s प्लेस में देख रही हूँ मैं तो वो इवन नंबर है. अगेन मेरे पास 2 2 करके ही डिवाइड हो पा रहा है. ठीक है, आप अपनी वीडियो पॉज करके इसको देखना और राइट डाउन करना, आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये डिवाइड किया. अब मेरे पास लास्ट में जो 114 27 50 बच रहा है. 27 की वजह से ये सारे के सारे इवन नंबर्स नहीं है, एक ऑड नंबर है तो इसका मतलब 2 डिवाइड नहीं कर सकता. और 3 भी आपका डिवाइड नहीं करेगा. 3 के टेबल में 50 आता ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ा अपना कॉमन डिवीजन मेथड. और इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट मुझे HCF देगा. तो 2 2 4 4 2 8. क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे बेटा. LCM फाइंड करना है लिस्टिंग मेथड से. तो आपके पास जो भी नंबर है उनके मल्टीपल्स लिखो. कम से कम 5 लिख सकते हो आप. जैसे 20 का मैंने 5 टाइम्स लिखा, 50 का 5 टाइम्स लिखा, 51 52 53 इस तरीके से 100 को भी. एंड मुझे सबसे पहला नंबर कौन सा मिला कॉमन 100. तो मुझे बार बार सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 2-3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. पहला ही जो कॉमन मल्टीपल होगा जो तीनों में सेम होगा वही मेरा LCM है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड LCM कॉमन डिवीजन मेथड. जो कॉमन डिवीजन मेथड है LCM का, उसमें आपको नंबर लेने हैं प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हो. जैसे 2 3 7 और किसी नंबर से डिवाइड होता ही नहीं है. उनको यूज़ करते हुए को डिवाइड करना है. ठीक है, 2 ने इन तीनों को डिवाइड किया, नहीं 2 ने 18 को डिवाइड किया 9 टाइम्स. 27 नहीं आता, 27 एज इट इज़ लिया. 2 के टेबल में 63 भी नहीं आता क्योंकि ऑड नंबर है तो वो भी एज इट इज़ लिया. ठीक है, फिर आपने देखा कि और तो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता तो 3 से आपने डिवाइड करा, यहाँ पे लिखा 3 से डिवाइड करा. इस तरीके से आपको डिवाइड करके लास्ट में 1 मिल गए
हर नंबर की जगह 18 के बदले 1 मिल गया, 27 1, 63 1, टर्न हो गए ये सारे के सारे 1। इसका मतलब है अभी आपका एलसीएम ख़त्म हो गया है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई, जैसे आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो आप राइट हैंड साइड कॉलम खींच लीजिएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा कितना होता है, कितना होता है 18 3 ज़ा 54। नाउ 54 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास रफ कॉलम है, आप मल्टीप्लाई करो। 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 35 + 2 37, so 378 is the answer, LCM. This way you will do your homework. Question number 1 2 3 4 of exercise 5.3 A and B part. Okay students, have a nice day. Bye bye.